Hello friends, myself CA Sangam Sir, Agarwal. increase your volume. Sir, increase your volume. Hello friends, myself CA Sangam Agarwal, and we are come again with a very good topic for all of you. Today we are going to discuss on a topic basic of international taxation and DTAA basically. So friends, today our main agenda to discuss about the depthness and basicness of the international taxation. What is exactly international taxation? So that all the youngster, those who want to come into the practice of international taxation, can understand the importance of international taxation and can understand the basic, so that they can further study that and come into the practice of international taxation. And friends, this video is also important for those practicing chartered accountants and other professionals, those who are doing the work of international taxation. Sometimes we are actually working in the such field, but we are not aware about the basics of that. So we have organized this series. In this series, we have a multiple sessions, and in these sessions, firstly, we will discuss about the basic knowledge of a particular subject. Then we'll come on to the working knowledge. Then somehow we go to the advanced knowledge and the expert knowledge of the subject. So in this series, today we have invited CA Manu Goyal, who is a chartered accountant come company secretary, who is basically an educator who is passionate to teach. He is a very good teacher among the professionals. Yeah, in a very young age, he got a good name and fame in the market of study and teaching. Currently, he is associated with the many institutions where he is providing his services. So it is our proud privilege to invite him on discussion on this very important topic. And friend, we will make this video in such a manner so that we can make this interaction live. So in between, I will ask a question to Manuji and take some examples from him so that we can have a better understanding over this matter. So I will not take much time and invite Manuji to take this deliberation further and make us aware about this important topic. Over to you, Manuji. Thanks, Mr. Sangam Agarwal ji. It's a privilege for me that you offer me such a wonderful and big platform to speak on a webinar, and this webinar or webinar on social media like this Zoom platform reduces the gap between the members, and it enhances the reach to the people. So I welcome our audience, and thanks again, Sangam sir, for offering this opportunity to me. So I would like to start my presentation. Yeah, a blank screen is visible, sir. Yes, yes. And I am audible. Yes, you are audible too. Okay, okay. So हम start करते हैं friends. बात जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन, और इसके अंदर आज जो हम बात करेंगे वो डीटीएस, या हम ये कहें कि डीटीए के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो रिलीफ देती है डबल टैक्सेशन में, तो वो रिलीफ के ऊपर आज हमारी जो डिस्कशन है वो ज्यादा चलेगी। और हम उससे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन पर। तो जब हम बात करें इंटरनेशनल टैक्सेशन और एक ब्रांच हम लेके चलते हैं डोमेस्टिक टैक्सेशन, तो देखिए मैं ये कहूंगा कि सबको क्लैरिटी है, जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में उनको पता है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है। पर जो लोग इस चीज से डील नहीं करते, जो इसका काम नहीं करते, इसकी एंगेजमेंट्स नहीं लेते, उन लोगों के लिए क्लैरिटी या एक डिस्कशन लेना चाहूंगा कि एक क्लियर करना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी टर्म है, क्या ये ब्रांच को वो एक अलग ब्रांच समझ रही है, डोमेस्टिक टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, क्या ये सही में एक ब्रांच है टैक्सेशन की, या इंटरनेशनल टैक्सेशन कुछ और कहना चाहता है? ये जो एक अलग ब्रांच बनी है किस पर्सपेक्टिव में बनी? तो डोमेस्टिक टैक्सेशन का मतलब है कि एक असेसी है वो रेजिडेंट है एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर और उसका सोर्स भी वहीं पे लोकेटेड है, तो उसके ऊपर डोमेस्टिक टैक्स लॉज लग गए। जैसे अगर मैं इंडिया एक कंट्री लूं और बोलूं जी ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, कंट्री है, तो यहाँ का जो टैक्सेशन लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो क्या हो गया? डोमेस्टिक टैक्स लॉ। और मिस्टर संगम अग्रवाल जी प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली के अंदर ही,
और वो दिल्ली के अंदर ही उनका सोर्स है, सारे के सारे क्लाइंट्स जो हैं या जो अपनी सर्विसेज देते हैं सारी की सारी इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है। तो इनके ऊपर जो इनकम टैक्स एक्ट लगा और इन्होंने क्या कहते हैं अपना इनकम टैक्स पे किया एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक टैक्सेशन। जब हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करेंगे तो क्या कोई इंटरनेशनल टैक्स करके कोई वर्ड होता है? तो देखिए आप कोई भी लिटरेचर रेफर कर लीजिए वर्ल्ड का, कोई भी टैक्स स्टैट्यूट पर पढ़ लीजिए, उसमें आपको कोई इंटरनेशनल टैक्स वर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं होता। क्योंकि अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं या आपकी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या आप क्या करते हैं बाहर किसी को लोन देते हैं, वहां से इंटरेस्ट कमा रहे हैं फॉरेन से, आपने किसी को अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज करने के लिए दिया, उसके बदले आप रॉयल्टी कमा रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई इंटरनेशनल टैक्स नहीं लग रहा। ना तो सप्लायर के ऊपर कोई इंटरनेशनल टैक्स करके कोई टैक्स लगने वाला, ना ही रिसिपिएंट के ऊपर कोई इंटरनेशनल टैक्स करके इस नाम का टैक्स नहीं लगने वाला। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन है क्या? इंटरनेशनल टैक्सेशन मैं कहूंगा एक प्लेथोरा है, मैं कहूंगा एक सेट है बहुत सारे लॉज का, रेगुलेशंस का, रूल्स का, स्टैट्यूट्स का, जो कि डील करते हैं ऐसे टैक्स रिलेटेड इश्यूज। जनरली जिसमें टैक्स रिलेटेड इश्यूज आएंगे वो आएंगे डायरेक्ट टैक्स। हमारी कंट्री के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स थे वो थे वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स जो है वो आज भी प्रिवेलेंट है। 2015 में जो वेल्थ टैक्स बंद हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और नेशंस में बंद हो गया हो, क्या पता वर्ल्ड वाइड कुछ कंट्रीज आज भी वेल्थ टैक्स लगाती हो। तो यहां जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो उन सारे डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड इश्यूज से डील करता है जब भी कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ टू नेशंस। और हम ये भी कह सकते हैं, देखिए यहां पे जो मैंने मेंशन किया है ये ही सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन को इंक्लूड नहीं करती है, डेफिनेशन फुल फ्लेज नहीं है। अगर हमारी सेम टेरिटरी के दो लोग बाहर जाके अगर बाहर कोई एसेट है या बाहर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। और अगर एक रेजिडेंट है एक कंट्री का, वो अपने जो स्कोप ऑफ ऑपरेशंस है उनको बाहर तक एक्सटेंड करता है, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर लेके जाता है, या हम बात करें ये जनरली किन के केस में होता है, ये होता है एमएनईज के केस में, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। अब मल्टीनेशनल एंटरप्राइज का मतलब कि कोई भी एंटरप्राइज जिसके सिर्फ सेल ऑपरेशन ही, आप ये नहीं देखेंगे कि एमएनई वो कहलाएगी जिसके जो कस्टमर्स हैं वो वर्ल्ड के अंदर लोकेटेड है। मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इंडिया में कस्टमर है सिर्फ, पर जो उसका जो बिजनेस प्रोसेस है, मान लीजिए उसका जो प्रोडक्शन है, उसका बीपीओ है, उसकी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो वाइड स्प्रेड है, वो दूसरे नेशंस में है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बाहर लोकेटेड है, वो एक्सपोर्ट करता है तो वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन या मैं कहूंगा इनबाउंड सर्विसेज लॉजिस्टिक्स उनके अगर दूसरे नेशंस के अंदर है और उनके कस्टमर भी अगर एक ही नेशन, सिर्फ एक नेशन के अंदर है, तब भी वो क्या कर रहे हैं? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं कि सेल, सर्विसेज और इनफ्लो ऑफ रॉ मटेरियल है, तब भी वो क्या है? ट्रांजैक्शन। तो अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर जाती है वो ट्रांजैक्शन, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बन जाती है। तो आज का जो सिनेरियो है, आज जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बात करती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। जब वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करती है तो उसमें वो चाहते हैं कि हर एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चाहते हैं वो, और टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस रखती है कि हमें जो अलग एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ना, हर एक एस्पेक्ट वो ऐसी ऐसी कंट्री में लोकेट करना चाहिए जहां पे उनकी कॉस्ट उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की सबसे कम आए। मान लीजिए मुझे लगता है कि जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, वहां की लेबर बहुत सस्ती अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, नॉर्थ कोरिया में प्रोडक्शन, जो मेरा लेबर इंटेंसिव काम था वो मैंने वहां रख दिया। मुझे लग रहा है कि यूके में मुझे जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा सस्ते मिल जाएंगे, वहां पे मैं अपना डाटा स्टोर कर सकता हूं, तो मैंने अपना जो डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज है वो मैंने यूके बेस्ड कर दिया, वहां के फार्म्स में लोकेट कर दिया।
मुझे ऐसे लगता है कि जो रॉ मटेरियल है वो मुझे यूएई से बेस्ट मिल जाता है, बेस्ट प्राइस पे। तो मैंने जो रॉ मटेरियल एक्वायर कर रहा हूं वो यूएई से कर रहा हूं। तो ये नीड है। और मेरा जो कस्टमर है, मुझे लगता है जो मेरा कस्टमर है वो मुझे बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी देगा, इंडियन कस्टमर और ऑस्ट्रेलियन कस्टमर। तो मेरी मार्केटिंग फैसिलिटीज कहां पे लोकेटेड होगी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मैं एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज बन गया, क्योंकि मेरे जो ऑपरेशंस हैं वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा भी है। मतलब मैं कहूंगा कि मेरी जो होम कंट्री है उसके अलावा मेरी डिफरेंट डिफरेंट होस्ट कंट्रीज भी है जहां पे मेरा बिजनेस चलता है। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस की वजह से जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज निकल कर आते हैं, उन सारी इश्यूज को हम मिलाकर कहते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन, उनको डील करना। तो अब मैं आपको एक कुछ लिस्ट बताना चाहूंगा, कुछ मैटर्स बताना चाहूंगा जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर आ सकते हैं। आप कह सकते हैं ये स्कोप ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन है, पर ये जो लिस्ट है ये एक, मैं कहूंगा एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से और ऐड कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे हम बात करेंगे कि इसके अंदर आप कवर कर सकते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ। इसके ऊपर ही आज हमारी मेन चर्चा है। तो ये मैं आपको एक शॉर्ट में पहले कवर करता हूं कि डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या है। अब कोई भी जनरली क्या होता है कि दो बेसिस हैं टैक्सेशन के, एक है सोर्स बेस्ड रूल और एक है रेजिडेंट बेस्ड रूल। दोनों, रेजिडेंट बेस्ड रूल ये कहता है कि जहां पे रेजिडेंट है उस कंट्री का हक बनता है टैक्स लगाने का। सोर्स बेस्ड बोलता है जहां पे सोर्स है उस इंसान का, वो कंट्री के पास हक है। तो अब एक इंसान है जो रेजिडेंट इंडिया का है और उसने सोर्स ऑफ इनकम कहां से कमाया, यूके से। तो यूके वाली बोलेगी हम भी टैक्स लगा रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी हम भी टैक्स लगा रहे हैं। तो जब ये दोनों टैक्स लगाएंगे तो सेम इनकम के ऊपर डबल टैक्स लग गया। अब ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का भी कि सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर, सेम इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं लगना चाहिए। तो वो आज हम बात करेंगे डिटेल में। ये भी एक इंटरनेशनल टैक्सेशन की स्टडी का टॉपिक बन सकता है। तो दूसरा मॉडल टैक्स कन्वेंशन। मनु जी, हम यहाँ पे वोडाफोन का एग्जांपल भी समझ सकते हैं आई थिंक, बिकॉज वोडाफोन जो कंपनी थी वो एक इंडियन कंपनी थी। हाँ जी सर। और उसके जो होल्डिंग कंपनी थी वो इंडिया से बाहर थी। जब वोडाफोन का ट्रांसफर हुआ कंपनी का, तो फिर आई थिंक दो नॉन रेजिडेंट कंपनीज ने आपस में ट्रांजेक्शन करी, बट ड्यू टू कंपनीज इन इंडिया दैट बिकम टैक्सेबल इन इंडिया। तो आई थिंक आप सर बिल्कुल इस सारी चीज को वोडाफोन के एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने उसी टॉपिक को एक अलग टॉपिक में क्लासिफाई कर दिया है। ओके। मैं उस टॉपिक को अभी इसी एग्जांपल से लेके चलता हूं। संगम जी ने जो टॉपिक छेड़ा है, जो एग्जांपल इन्होंने बीच में डाला है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो अब मुझे हेल्प कर देगा जो मुझे आगे पॉइंट्स समझाने हैं स्टडी के। तो मैं उससे लिंक करके चलूंगा आगे। तो देखिए, ये जो हम डबल टैक्सेशन का जो रिलीफ देंगे, इसके बीच में क्या करती है दोनों सरकार, रेजिडेंट, जहां पे रेजिडेंट है एसएससी का, और जहां पे सोर्स है, ये दोनों सरकारें आपस में क्या करेंगी, कुछ एग्रीमेंट करेंगी कि भैया किसको कितना टैक्स जाना चाहिए, किसका कितना हक बनता है, कौन अपना टैक्स का राइट छोड़ेगा। तो उसके लिए जो एग्रीमेंट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। फिर बात आती है कि ये जो एग्रीमेंट्स बनने हैं, आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा और आप लोग कंपनी लॉ में काम भी करते हैं, आरओसी वगैरह का। तो जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो आप मेमोरेंडम बनवाते हैं क्लाइंट्स का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवाते हैं। उसका फॉर्मेट कहां दे रखा है, उसका फॉर्मेट दे रखा है शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब वहां पे क्या है, वहां पे एक बेसिक फॉर्मेट दे रखा है कि मेमोरेंडम ऐसा होना चाहिए। एक बेसिक फॉर्मेट दे रखा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये पॉइंट्स होने चाहिए। अब लॉ ये भी कहता है कि अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट, अगर आपकी अलग है, आपके सर्कमस्टांसेस अलग है, तो आप उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, कस्टमाइज वे में भी बना सकते हो। तो ऐसे मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या है, 3 फॉर्मेट्स है, 3 तरीके के फॉर्मेट्स हैं वर्ल्ड वाइड। एक है ओईसीडी मॉडल, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोप की। उसने एक फॉर्मेट दे रखा है कि आप अगर ट्रीटी बनाना चाहते हो तो ऐसी बना सकते हो। दूसरा फॉर्मेट दिया है यूएन मॉडल।
तीसरा जो फॉर्मेट है वो है यूएस मॉडल। तो जब हम मॉडल टैक्स कन्वेंशन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वो बेसिक फॉर्मेट क्या है, और उन्हीं से हमें पता चलेगा कि कैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस की इंटरप्रिटेशन निकाली जाती है, क्या एक एक पर्टिकुलर आर्टिकल की अहमियत है, वो क्यों डाला गया, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करी जाती है। और जब कोई नेशन बना रहा है, देखिए ऐसा तो नहीं है आप भाई लोग क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। हमारे में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा हो सकता है जो गवर्नमेंट का एडवाइजर बन सकता है, लाइक गिरीश आहूजा सर जी। तो उस केस के अंदर अगर आप एडवाइजर है तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई कंट्री, अगर इंडिया को आज किसी कंट्री के साथ किसी पर्टिकुलर टैक्स एस्पेक्ट पे अगर डीटीए बनाना है किसी नई कंट्री के साथ, तो हम कौन सा मॉडल फॉलो करें। ये डिपेंड करेगा कि जो सामने वाली कंट्री है वो इंडिया की तरह डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो टैक्स ट्रीटीज हैं ये अप्लाई कैसे होती हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है हर एक क्लॉज की, ये भी एक स्टडी का पार्ट बनता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। फिर अब हम बात करते हैं जो संगम सर ने स्टार्ट करा था, उसको मैंने एक अलग ब्रांच बना दिया, बेप्स, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, या आप बोलिए कि टैक्स अवॉइडेंस। अब जब मैं टैक्स अवॉइडेंस की बात करता हूं तो मेरे को कुछ टर्म्स में और क्लैरिटी देने की या डिस्कस करने का मेरा मन कर रहा है, तो मैं वो लेना चाहूंगा यहां पर कि एक टर्म होती है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग कहती है कि जी एक ये स्ट्रेटेजी है, आप अपने अफेयर्स को इस तरीके से मैनेज करिए कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है ना वो रिड्यूस हो जाए, और वो रिड्यूस कैसे हो, लीगली हो। लीगली मतलब कि इन कंप्लायंस ऑफ टैक्सेशन लॉ हो। दूसरा उसके अंदर एक फीचर और होना चाहिए, जो आप वो जो लीगल प्रिंसिपल्स या जो आपको लॉ ने आपको रिबेट दी है, एग्जेम्पशंस दी हैं, डिडक्शंस दी हैं, आप उनको अवेल कर रहे हो और उससे अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे हो। पर इसके अंदर जो लॉ मेकर का स्पिरिट था, वो पर्टिकुलर जो प्रोविजन आप अवेल कर रहे हो, उनके पीछे जो लॉ मेकर का स्पिरिट है वो फॉलो होना चाहिए, कि जिस पर्पस से लॉ मेकर ने आपको वो क्लेम्स दिए, डिडक्शंस दी, आप वही पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट वैसी करो। जैसे 80C का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 80C में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था 80C के पीछे? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि अगर एक इंसान पीपीएफ में डालता है तो बुढ़ापे में अगर उसके बच्चे उसका साथ ना दे तो उसको एक सोशल सिक्योरिटी में रहेगी। अगर वो अपने आरपीएफ में पैसा डालता है अपना सैलरी का कटवा के, तो जब वो रिटायर होगा 60 साल की एज में तो उसको एक सोशल सिक्योरिटी रहेगी, उस देश को उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही फंड से अपनी वेलफेयर कर सकता है पोस्ट रिटायरमेंट। तो यहां पे लॉ मेकर की एक इंटेंशन थी कि वो एनकरेज करे सेविंग्स, जो कमाने वाले हैं लोग, सैलरी वाले हैं। तो अगर आप उसी स्पिरिट में 80C में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आरपीएफ, पीपीएफ, तो वो क्या है, लॉ मेकर का स्पिरिट फॉलो हो रहा है और वो लीगली अलाउड भी है। तो दिस इज नोन एज द टैक्स प्लानिंग। अब बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस में भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं लोग, और इसमें भी लॉ फॉलो हो रहा है, ये भी लीगली है, पर यहां पे ना जो लॉ मेकर का जो ट्रू स्पिरिट है वो फॉलो नहीं हो रहा होता। लॉ मेकर की जो आत्मा थी, जो लॉ मेकर कहना चाहता था लॉ के पीछे, वो फॉलो नहीं हो रही। वो कैसे फॉलो नहीं हो रही? यहां पे लोग लीगली प्रोविजन तो फॉलो करते हैं पर उसको लूप होल बना लेते हैं। अब लूप होल हम तब बोलते हैं जो इंटेंशन थी वो फॉलो नहीं हो रही। ऐसे ही इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर हम पुराने प्रोविजंस को रेफर करें, सेक्शन 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। अब आप मान लीजिए आपने कोई एसेट परचेज करा, कैपिटल एसेट 8 महीने पहले, और आपने वो एसेट बेचा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन गया आपका। वो शॉर्ट टर्म गेन पर अब आप कैपिटल गेन पर अब आपको टैक्स देना है। अब आप इसको कैसे, आपके पास और कोई लॉसेस है नहीं सेट ऑफ करने के लिए, तो आपने क्या किया, एक कंपनी थी ए लिमिटेड, उसने अपना बोनस शेयर
डिक्लेयर करा कि एक पर्टिकुलर डेट पर जो इस कंपनी का मेंबर होगा, जिसके पास शेयर्स होंगे, उसको ये बोनस दे देगी। और बोनस का रेशियो है सिंप्लिसिटी के लिए 1:1। अब वो शेयर मार्केट में मिल रहा था 800 रुपए का बिफोर बोनस। आपने उस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीद लिए 8 लाख रुपए की। जब आपने उस कंपनी के 8 लाख रुपए के वो शेयर्स खरीदे, आफ्टर बोनस आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 1000 और बढ़ जाएंगे। फंडामेंटली उस कंपनी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उस कंपनी ने बोनस शेयर्स ही तो दिए हैं, उस कंपनी का पैसा तो आया नहीं, और ना उस कंपनी के कोई बिजनेस स्ट्रक्चर में चेंज आया, जिसकी वजह से उसकी जो नेट वर्थ है वो सेम रहेगी, पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे उसके। वो डबल होने की वजह से उस कंपनी के जो पर शेयर की वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। अब आपने क्या किया, जब आपको बोनस शेयर्स मिल गए, फ्री वाले शेयर्स, आपने जो 1000 शेयर ओरिजिनली खरीदे थे वो आपने बेच दिए। अब जब आपने बेचे तो मार्केट में रेट गिरा हुआ है, मार्केट में रेट है मान लो कि 400 रुपया आफ्टर बोनस। आपने वो खरीदे कितने के थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी थी 8 लाख, 800 रुपए के 1000 शेयर, आपने बेचे 4 लाख रुपए के, आपका 4 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक हो गया, और सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक हो गया आपका। इसको आप आपकी जो कैपिटल गेन्स थे उससे सेट ऑफ कर सकते हो। yes. अब जो आपने फ्री वाले शेयर्स थे वो आप रोक के रखोगे, वो आप कितने साल बाद बेचोगे, 1 साल बाद, जिस दिन आपको बोनस शेयर्स मिले उसके 1 साल बाद बेचोगे। आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन गया आपके वो शेयर्स। उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, 0, पर आपने वो 1 साल बाद 400 रुपए में बेच दिए 4 लाख रुपए के, तो आपके पास जो सेल कंसीडरेशन आई लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0, पर ये कैपिटल गेन क्या थे, एग्जेम्प्टेड 1038 के अंदर। तो एक तरीके से आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसके अंदर, मेन ऑब्जेक्टिव आपका वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं था, आपका मेन ऑब्जेक्टिव था अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करो। और क्या जब ये 1038 बना, क्या इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग ऐसे बोनस स्क्रिपिंग करें? तो आपने लॉ मेकर की जो स्पिरिट थी उसके अगेंस्ट जाके काम किया, पर लीगली काम किया। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो दिस इज नोन एज द टैक्स अवॉइडेंस, यू हैव यूज्ड अ पर्टिकुलर लूप होल। अब बात करते हैं टैक्स इवेजन की। टैक्स इवेजन होती है सरासर टैक्स की चोरी। अब टैक्स की चोरी कैसे, रॉबरी कह सकते हैं आप टैक्स की, वो कैसे, जब आप क्या करते हो, फॉल्स क्लेम करते हो, फॉल्स स्टेटमेंट्स देते हो, अपने जो पर्टिकुलर्स हैं टैक्स रिटर्न के वो फॉल्स भरते हो, आपने अपना जो रेवेन्यू दिखाया ही नहीं, आपने अंडर रिपोर्ट करा अपने रेवेन्यू को, आपने अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया। क्या आप ऐसे कह सकते हो सरकार को कि जी ये मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर था, मैं पीएनएल में डाल रहा हूं? आप लीगली नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, जब भी आप फॉल्स क्लेम्स करते हो जो लीगली अलाउड ही नहीं है, आपको झूठ बोलना पड़ा ना। टैक्स अवॉइडेंस में आपको झूठ नहीं बोलना था, आप सरासर साफ साफ दिखा रहे हो कि जी हमने इतने के खरीदे थे, हमने वाले बेच दिए, जो महंगे खरीदे थे, जो फ्री वाले हम बाद में बेच रहे हैं। पर यहां पे आप सरकार को ऐसे नहीं कह सकते कि जी हमारा ये पर्सनल एक्सपेंडिचर था, हम बिजनेस में दिखा रहे हो। आप उसको दिखाते ही आप झूठ बोलते हो कि हम वो हमारा एक्सपेंडिचर ही क्या है, बिजनेस नेचर का है। तो जब भी आप फॉल्स क्लेम करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्स इवेजन। क्या बोलेंगे, टैक्स इवेजन। अब नेक्स्ट हम कंसेप्ट पे आते हैं, टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट इज, देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग। यू कैन से द टैक्स प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। जो हमने बात करी टैक्स प्लानिंग की, अगर आप उसके अंदर कुछ चीजें और जोड़ दो मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट किस चीज का, आपको अपना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोल करना है किस चीज को, टैक्स रिलेटेड मैटर्स को। अगर आप अपने जो कंप्लायंसेस है उनको मैनेज कर लो, जैसे कि आपको आप एक बिजनेस चला रहे हो और आपने लोगों का टीडीएस काटा, वो आपने सही टाइम पे काटा, आपने सही टाइम पे वो जमा करा दिया, आपने सही टाइम पे टीडीएस रिटर्न्स भर दी, आपने सही टाइम पर, बिल्कुल ही सही टाइम पर आपने उनको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर दिए।
तो आपके ऊपर ना तो कोई इंटरेस्ट, ना कोई पेनल्टी, ना आपके ऊपर कोई लेट फी लगेगी। तो आपने क्या किया, अपनी कंप्लायंस कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम कर दी। दिस इज नोन एज द टैक्स मैनेजमेंट। तो जो मैनिपुलेटिव ट्रांसफर प्राइसिंग लोग करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट टैक्स अवॉइडेंस, दैट इज ऑल अबाउट टैक्स अवॉइडेंस। अब ये वेब्स है क्या, मैं इसमें एग्जांपल लेना चाहूंगा वोडाफोन कंपनी का। अब ये जो वोडाफोन केस था, ये ऐसा था कि इसमें एक कंपनी थी हच एसआर। हच हच एक ग्रुप है बहुत बड़ा, हचिसन, हचिसन इंटरनेशनल होल्डिंग्स, ये ग्रुप था हांगकांग का। इसने एसआर इंडिया, एक एसआर ग्रुप है इंडिया के अंदर काफी फेमस, इन दोनों ने मिलकर 2000 के करीब करीब एक हच खोला, हच कंपनी खोली, टेलीकॉम कंपनी खोली इंडिया के अंदर। अब ये देखा गया कि इंडिया के अंदर 2008-7-8 के अंदर ना एफडीआई बहुत ज्यादा आ रही थी। इस एफडीआई के रिकॉर्ड को ट्रैक किया वोडाफोन कंपनी ने, जो कि नीदरलैंड की थी। उसने देखा कि इंडिया में जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, जबकि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा था, डिप्रेशन चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि भैया किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक चीज की कमी नहीं हो सकती, इंसानों की। जब इंसानों की कमी नहीं हो सकती तो बातों की कमी नहीं होगी, जब बातों की कमी नहीं होगी तो टेलीकम्युनिकेशन। पॉपुलेशन, इंडिया जैसी कंट्री में जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां बहुत ज्यादा इसकी क्या कहते हैं स्कोप है। तो उन्होंने सोचा कि हम ये जो हच, एक बहुत अच्छी कंपनी चल रही थी, अगर हम उस समय की बात करें, आज से 12-13 साल पहले की बात करें, तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम हच को एक्वायर कर लेते। तो वोडाफोन की इंटेंशन थी, वोडाफोन जो कि नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी थी, उसकी इंटेंशन थी हच को खरीदने की। पर हच जब इंडिया में आया तो उसने बड़ी चालाकी से, उसको पता था कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और वो बेच के जाना चाहता था। वो थोड़े टाइम ना यहाँ पे काम करके फिर हज को बेच के निकलना चाहता था। पर जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करी, वो इनडायरेक्ट रूट से आए। वो आए मॉरिशियस रूट से। उन्होंने कंपनी खोली सीजीपी इन्वेस्टमेंट। आप कह सकते हैं ये शेल कंपनी थी, डब्बा कंपनी थी, जो कि मॉरिशियस में क्रिएट करी गई। अब क्या किया, वोडा जो हचिसन ग्रुप था, उसने जब एसआर के साथ पार्टनरशिप करी, 67% स्टेक ली हच ने, तो उन्होंने सबसे पहले पैसा डाला सीजीपी इन्वेस्टमेंट के अंदर। सीजीपी इन्वेस्टमेंट ने, अब सीजीपी इन्वेस्टमेंट हच ग्रुप की क्या बन गई, होली ओन्ड सब्सिडरी। अब हच जो सीजीपी था उसने इन्वेस्ट करा हच के अंदर, हच इंडिया के अंदर 67% स्टेक ली। जब वोडाफोन ने कहा हच को कि हम परचेज करना चाहते हैं, तो जो हच ग्रुप था उन्होंने हच के शेयर्स नहीं बेचे थे वोडाफोन को, उन्होंने बेचा था सीजीपी के शेयर्स। उन्होंने सारे के सारे सीजीपी के शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया था, ये माना जाता है कि आप कहीं पे भी रह रहे हो, अगर आप किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचते हो तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन बोलते हैं कि दैट ट्रांजैक्शन, दैट इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो इन्होंने हच के शेयर्स नहीं बेचे, इन्होंने बेचे किसके, सीजीपी के। जब सीजीपी के शेयर्स वोडाफोन को सारे के सारे बेचे गए तो सीजीपी का मालिक वोडाफोन, और सीजीपी किसका मालिक है, हच इंडिया का। अब इससे हुआ क्या कि जो सेलर है, शेयर्स का सेलर कौन है, हच ग्रुप, वो कहां पे बैठा हुआ है, हांगकांग, नॉन रेजिडेंट। किसके शेयर्स बेचे गए, सीजीपी के। सीजीपी क्या है, एक मॉरिशस की कंपनी है, नॉन रेजिडेंट। और जो खरीदने वाला है वो कौन है, वोडाफोन नीदरलैंड, वो भी क्या है, एक नॉन रेजिडेंट। तो देखिए ये ट्रांजैक्शन हुई बाहर फॉरेन में। ये जो शेयर्स थे, जो कैपिटल एसेट था, वो लोकेटेड कहां था, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया। जो बायर और सेलर है वो दोनों के दोनों नॉन रेजिडेंट है, तो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई नहीं होता, इनकम इंडिया के अंदर अक्रू और अराइज मानी नहीं जाएगी। पर देखिए वो जो सीजीपी थी, सीजीपी के थ्रू वोडाफोन ने हज के ऊपर कंट्रोल पा लिया। अब यहां पे मुंबई के एक एओ ने केस लगा दिया
कि भैया उसने जब अखबार में पढ़ा कि भाई ये जो हज कंपनी है ये तो वोडाफोन बन गई है, तो उस कंपनी के जो जुरिडिक्शनल ऑफिसर था उसने केस इन्वोक कर दिया कि एक तरीके से इन्होंने तो ये जो सीजीपी इन्वेस्टमेंट थी तो डेरिवेटिव थी बीच में, क्योंकि इसकी जो सही वैल्यू है वो डिराइव कहां से हो रही है, इंडियन कंपनी से। तो इन्होंने तो लॉ को जो बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ट्रांजैक्शन का, इसका मेन पर्पस था टैक्स अवॉइड करना, और जो ये लीगली कर गए, इसलिए हम इसको टैक्स की चोरी नहीं बोलते, टैक्स इवेजन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस। तो दैट पार्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टैक्सेशन। फिर ऐसी अच्छा, इसको ये जो स्ट्रेटेजीज होती हैं जहां पे हम टैक्स अवॉइड करते हैं इंटरनेशनली अपनी ट्रांजैक्शंस को स्ट्रक्चर करके, इसको हम एक और नाम बोलते हैं, टेक्निकल नाम देते हैं इसको, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। जिस कंट्री से आप जहां पे सोर्स लोकेटेड है वहां पे आपने क्या करा, वो बेस इरोड कर दिया, वो सोर्स इरोड कर दिया, जंग लगा दिया उसको, और उसको आपने शिफ्ट कहां करके ले गए, ऐसे टैक्स जुरिडिक्शन में जहां पे टैक्स रेट क्या है, लो है या नील है। लाइक मैं बात करूं टैक्स हेवंस की, बर्मुडा, अंडोरा, लग्जमबर्ग, आयरलैंड। अब इनको खत्म करने के लिए, इनको रोकने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर G20 जैसी समिट्स बनी, और उन्होंने बोला कि हर कंट्री को अपने डोमेस्टिक टैक्स लॉ के अंदर बदलाव लाने चाहिए, जो हम लेकर भी आए। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस हम लेकर आए हैं सेक्शन 92 के थ्रू। तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस हैं, प्लस उसमें जो 6 मेथडोलॉजीज दी गई हैं, लाइक कॉस्ट प्लस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, बेस्ट जजमेंट मेथड, these all are the part of the international taxation study. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जितने भी एंटी अवॉइडेंस मेजर है इनके लिए हम ट्रांसफर प्राइसिंग तो ले आए कि हमें जो प्राइसिंग है ट्रांजैक्शंस की, जो जितना जहां पे रीजनेबल सोर्स लोकेटेड है उस बेसिस पे करना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस पे करना चाहिए। प्लस कुछ मेजर्स ऐसे थे जो ट्रांसफर प्राइसिंग से टैकल नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए यूएस, इंडिया जैसी कंपनीज नए प्रोविजन लेकर आई, जिसको जैसे कि एग्जांपल लेते कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही थी, अपनी पैसिव इनकम को ट्रांसफर कर रही थी बाहर टैक्स हेवंस में, उनको कंट्रोल करने के लिए हम सीएफसी लेकर आए। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की टैक्स अवॉइडेंस रोकने के लिए हम लेकर आए इक्विजिशन लेवी, लाइक फेसबुक। अगर कोई भी एसएससी इंडिया के अंदर अगर फेसबुक को 1 लाख रुपए से सालाना, 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना पे करता है तो उसको 6% इक्विजिशन लेवी देनी है। तो जिससे क्या होगा, एक इनकम टैक्स में तो नहीं, मैं कहूंगा ये इनकम टैक्स के अलावा है, फाइनेंस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टडी। फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, देखिए डोमेस्टिक टैक्स लॉ के अंदर हम बात जो करते हैं वो जनरली हम बात करते हैं रेजिडेंट, और रेजिडेंट में भी अगर मैं कहूं कि जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है उनके केस में हम 2 क्लासिफिकेशन और करते हैं रेजिडेंट की, क्या कि एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो उनका जो टैक्सेशन है दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टैक्सेशन लॉ। पर जब हम नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, इसमें आते हैं कि नॉन रेजिडेंट है कौन, कैसे डिटरमाइन करें कि इंडिया में कोई रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, और इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी भी निकालना पड़ता है। अच्छा, ये हम निकालते क्यों है, क्योंकि जो हमारा रेजिडेंट है ना उस पे तो हम कहते हैं रेजिडेंट रूल से उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम क्या है, टैक्स है। पर जो नॉन रेजिडेंट है उससे तो हम वही इनकम यहां पे टैक्स कर सकते हैं जो उसका सोर्स लोकेटेड है। जो वो फॉरेन में कमा रहा है वो तो फॉरेन के रिसोर्सेज यूज कर रहा है और वो वहां का रेजिडेंट है, तो उस पर इंडिया का हक नहीं बनता। इसलिए नीड आती है रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने की, और वो रेजिडेंशियल स्टेटस कहां से पता चलता है, सेक्शन नंबर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और अगर हम बात करें कि ये जो कौन कौन सी इनकम रेजिडेंट की टैक्सेबल है, कौन कौन सी नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल है, कौन कौन सी ऑर्डिनरी की, नॉट ऑर्डिनरी की, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है सेक्शन नंबर 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो that provision are also part of the
इंटरनेशनल टैक्सेशन प्लस कुछ ऐसी छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने। लाइक मैं बात करूं कि इंडिया में जो कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है। अब तो ये कोविड की वजह से कम हो गई है कॉस्ट, क्योंकि हमें लिक्विडिटी बढ़ानी है, जिसकी वजह से बैंक रेट हो गए, रेपो रेट कम हो गए। पर अगर हम कोविड से पहले की बात करें, जनरली बात करें, तो जो इंडिया में फाइनेंस कॉस्ट है कॉर्पोरेट्स के लिए जनरली वो 10% से ज्यादा है, 10 से 18% के बीच में लाई करती है। पर हम यही बात करें यूएस जैसी कंट्रीज की, वहां पे क्या है, वहां पे जो जनरल इंटरेस्ट रेट है वो 1 या 2% है। तो अगर हम वहां से बाहर से पैसा इंडिया में लेकर आए और इंडिया के बिजनेस में लगाएं, एनकरेज करें, तो उसके लिए उससे इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी। तो उसके लिए हमें कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे। हमें यह करना पड़ेगा कि अगर कोई रेजिडेंट इंटरेस्ट इनकम कमाता है तो वो टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट अगर कोई इंटरेस्ट इनकम कमाता है तो उसमें छूट देनी है। तो दैट स्पेसिफिक privileges offered in the income tax act are also part of the international taxation study. फिर हमने ये पढ़ा कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो क्या होता है कि आज जो इकोनॉमी है हमारी, आज जो वाइब्रेंट इकोनॉमी है, आज ये सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो जब हम ये मूव कर रहे हैं ना, तो आज जो हमारा जो कॉमर्स है, ट्रेडिंग का या मैन्युफैक्चरिंग का, या जो डिलीवरी है हमारी, मेन सप्लाई है, वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक हो रही है। हम कहें क्लिक एंड ब्रिक मॉडल पे चल रहे हैं आज हम। ऑर्डर, तो जो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो सारा का सारा आजकल जनरली कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। चाहे डिलीवरी फिजिकल हो रही है, पर जितना भी गुड्स हैं उनकी सप्लाई चाहे फिजिकल है, पर ऑर्डर प्रोसेसिंग आजकल ज्यादा क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा, जो इनकी मार्केटिंग है, वो आज आप जो अटेंशन पे करता है ना कस्टमर, वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो एडवर्टीजमेंट आती है उस पर पे करता है ज्यादा अटेंशन। तो इसकी ग्रोथ होने की वजह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। जब ये ग्रो कर रहे हैं तो रेवेन्यू ज्यादा कमा रहे हैं। पर ये रेवेन्यू अगर हमारी इंडिया से भी क्लाइंट पकड़ते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है ABC रेस्टोरेंट, और वो अपनी एडवर्टीजमेंट कराता है फेसबुक के थ्रू, फेसबुक पे उसके पॉपआउट्स आते हैं। अब वो कमा यहां से रहे, फेसबुक पे मैं मन्नू गोयल, संगम जी और आप सभी बहन भाइयों ने अपने फ्री में अकाउंट्स खोल रखे। हम क्या बन गए, एक प्लेटफॉर्म बन गए फेसबुक वाले के लिए, और उसने वो प्लेटफॉर्म उस होटल वाले को अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए ऑफर कर दिया, उसके बदले वो कंसीडरेशन चार्ज कर रहा है। इसका मतलब जो हमने अकाउंट खोला है फ्री में, वो किसी उससे मेन कहां से कमाया जा रहा है, उस रेस्टोरेंट वाले से। अब वो फेसबुक सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इंडिया, पर वो फिर भी टैक्स पे नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी आप हमारे ऊपर टैक्स ही नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है वो तो डिटरमाइन होगा जहां पे हमारा क्या है, पी, और वो पी कैसे डिटरमाइन होता है, सर्वर से, और सर्वर कहां पर है, वो टैक्स हेवन में लोकेट कर रखा है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को भी टैक्स करने के लिए, ऐसे टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए भी हम क्या लेकर आए, टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। तो वो भी हम आगे लेके चलेंगे। एक सेकंड लास्ट टॉपिक क्या है कि एडवांस रूलिंग। मान लीजिए आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, या मैं कहूं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इंडिया में बिजनेस खोलना चाहते हैं, या आपका कोई क्लाइंट है वो आपसे फॉरेन से कांटेक्ट कर रहा है आपको, जी हमें कंसल्टेंसी चाहिए, इंडिया में कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो अप्लाई होंगे कि अगर वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करेंगे, और वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मानी क्या जाएगी। तो आपको भी उसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, तो आप सरकार से जाके सर्टेनिटी ले सकते हो। आप सरकार से पहले कह सकते हो कि हम ये ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, या हमारा क्लाइंट करने वाला है, हम उसके बिहाफ पे ये एडवांस रूलिंग फाइल कर रहे हैं, और आप हमें ये बता दो कि क्या रेट ऑफ टैक्स हो सकता है, ये ट्रांजैक्शन मानी क्या जाएगी, कौन से हेड के अंदर आप क्लासिफाई करोगे, ताकि एक सर्टेनिटी आ जाए। अगर सर्टेनिटी होगी तो आप एक बात बताइए, जो कंपनीज इंडिया में काम करना चाहती हैं वो काम करेंगी नहीं करेंगी, फॉरेन कंपनीज, इससे एफडीआई प्रमोट होगी नहीं होगी। अगर पहले से उनको पता हो इंडिया के अंदर ये रैशनलाइज तरीके का टैक्स प्रोविजन उनके ऊपर लगने वाले। तो एक और बात आती है
एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स और एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग एक वाइडर कंसेप्ट है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि आप जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करेंगे उसका क्या ट्रांसफर प्राइस लिया जाएगा या उसका जो मेथड है वो डिसाइड पहले से ही हो जाए। फिर अगर आप मान लीजिए संगम सर फॉरेन में कोई अकाउंट है उनका, और फॉरेन में जो उनका अकाउंट है या इन्होंने इनके अपने पैसे नहीं है स्विस बैंक में, इन्होंने किसी के बिहाफ पे होल्ड कर रखी है और ना ही ये बेनिफिशियरी है, इन्होंने उनके फैमिली मेंबर्स के भले के लिए ट्रस्ट खोल रखा है जिसके ट्रस्टी कौन है, मिस्टर संगम अग्रवाल जी, उसके क्रिएटर कौन है, मिस्टर एक्स। और वो कह रहे हैं जी आप ये ना ट्रस्ट जो मैनेज करोगे इसके लिए फीस ले लेना, और हम आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ ट्रस्टी कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस प्रॉपर्टी को रियलाइज करके पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज के लिए खर्च करोगे। क्या वो पैसा संगम अग्रवाल जी का माना जाएगा? उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? वो पर्टिकुलर पैसा जो है वहां फॉरेन में, तो वो हम पढ़ेंगे ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स लॉ के अंदर। ऐसे इश्यूज पढ़ेंगे। सिर्फ ये इशू नहीं है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। तो फ्रेंड्स हम एक पहला इशू लेकर, मनोज जी जैसे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है, ये इंडिया में सक्सेसफुल हो पाया है? जितनी मेरी नॉलेज कहती है डिपार्टमेंट ने तो बहुत ही कम एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स अप्रूव करे हैं, मतलब वेरी फ्यू व्हिच वी कैन काउंट ऑन द फिंगर्स ओनली। इज इट? सर मैं इसके लिए थोड़ा इलेबोरेटिव जाना चाहूंगा कि okay. सर किसी भी सर हम ये कहेंगे इंडिया इज अ इकोनॉमी विद सो मेनी लॉज बट विदाउट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए किसी कंट्री के जो लॉ है, लॉ के जो प्रोविजंस है, उसकी सक्सेस के पीछे जो मेन कारण होता है ना वो होता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कितनी इफेक्टिव है। तो अगर हम अब इंडिया की बात करें, ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया ना, तो देखिए ये जो हमारा जो संगम जी और मैं ये सीरीज लेके चल रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना। जितनी कंट्री के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगी उतना ज्यादा हम उन प्रोविजंस को क्लेम करेंगे, हम जो लीगल प्रोविजंस है उसको एनफोर्समेंट के अंदर लाने में हेल्प करेंगे, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्नमेंट है। तो देखिए इसके अंदर ये कहूंगा कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स अगर आप बात करें बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स की जिनके पास 30-30 करोड़ की ट्रांजैक्शन वाले क्लाइंट्स थे, उन्होंने काफी सारे फाइल किए हैं, ऊपर काफी सारी बाइंडिंग जजमेंट्स आई भी हैं। पर जो लैक है ना एडवांस रूलिंग के अंदर, ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि अगर आप एडवांस रूलिंग क्लेम करते हैं तो वो सिर्फ आपके ऊपर एप्लीकेबल है। मान लीजिए मिस्टर संगम अग्रवाल जी ने कोई एडवांस प्राइस रूलिंग ली, तो वो एप्लीकेबल किसके ऊपर होगी? डिपार्टमेंट और इनके लिए संगम अग्रवाल जी के लिए। अगर मैं सेम ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं तो उस पर एडवांस रूलिंग मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मुझे एक अलग से एडवांस रूलिंग फाइल करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें यह होता है कि कई बारी ना जो प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो एडवांस रूलिंग है उसको लेकर इतना बेनिफिट नहीं होगा जितनी वो कॉस्ट ऑफ टेकिंग दैट एडवांस रूलिंग है। पर मैं कहूंगा कि ये हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा इस एरिया के अंदर है नहीं। अगर वो अपने क्लाइंट को नॉलेज देना कि ऐसा प्रोविजन है तो इसकी स्कोप, मैं कहूंगा इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे सर आने वाले टाइम में। ओके। तो आज जो हम मेन टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है डबल टैक्सेशन रिलीफ। तो ये डबल टैक्सेशन होता क्या है? डबल टैक्सेशन पे जाने से पहले मैं आपको दो बेसिस बताऊंगा कि ऐसे बेसिस या रूल कह लीजिए जिसके बेसिस पे सरकारें टैक्स लगाती है। तो एक है सोर्स रूल। सोर्स रूल बोलता है कि जिस कंट्री के अंदर सोर्स है, जहां पे सोर्स लोकेटेड है, उस कंट्री का राइट बनता है टैक्स लगाने का। ऐसा क्यों? अगर वो पर्टिकुलर कंट्री कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ना मेंटेन करके रखती तो वो चांस कैसे मिलता आपको? वो सोर्स क्रिएट ही कैसे होता विदाउट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? आप आज सीरिया में बिजनेस करना आज कर सकते हैं? बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड नहीं है, वहां पे सोशल सिक्योरिटी क्या, वहां तो फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है। तो उस चीज के लिए वो सरकार खर्चा करती है, वहां की आर्मी पे खर्चा करती है, वहां की जनरल
पुलिस पे खर्चा करती है, वहां का जो मैं कहूंगा रोड ट्रांसपोर्ट है या डैम्स है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारी की सारी चीजें फैसिलिटी जब प्रोवाइड करी तभी तो वो इकोनॉमी बन पाई, तभी तो वो एक सोर्स ऑफ लिवलीहुड बन पाया। तो उस कंट्री का पूरा पूरा हक बनता है कि जो वो खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो जिससे वो सोर्स क्रिएट हो रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसको फाइनेंस, उसको फंड करने के लिए वो इंसान पे करे जो उस सोर्स से कमा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, जो भी आए, जो भी सोर्स को यूज करे, पैसा कमाए, वो लायबल है। मनु जी, मैं थोड़ा सोर्स को और समझना चाहूंगा एक एग्जांपल से। जैसे मेरे एग्जांपल में आई एम ए इंडियन कंपनी एंड आई वांट टू मेक सम इन्वेस्टमेंट इन सिंगापुर कंपनी, ओके। तो और एज एन इंडियन कंपनी आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट द सिंगापुर कंट्री, what kind of investment I have to do. For that I choose a company in Singapore who is the basically in investment banking and all, that will help me to invest in Singapore, okay. For that he raise a consultancy charges bill, for that I am paying from India, okay. So in that case the source, if you apply for the source rule basically, yes, so as per your understanding the source will be from India or source will be Singapore? सर, जो आपने इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई उसका सोर्स सिंगापुर है, पर वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसने आपसे जो इनकम कमाई, दैट इज उसका सोर्स इंडिया है, ओके। क्योंकि सर आप जो क्लाइंट हैं, आप उसने मार्केटिंग कहां करी, आपको ढूंढा कहां पे, इंडिया में। नहीं, एक्चुअली मैंने उसको ढूंढा, उसने मुझको नहीं ढूंढा। आई हैव सर्च हिम एंड कांटेक्ट हिम। सर दिस इज sir, I have to analyze on this, because I can't give a prompt answer on this, because there are 2 points, there may be 2 points in my mind, that it, because the source is located, the shares, the ink देखिए सर, अगर हम बात करें जो आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के जो पैसे दे रहे हैं, एडवाइजरी के जो पैसे दे रहे हैं एएमसी को, वो किस वजह से दे रहे हैं, आपने वहां इन्वेस्टमेंट करी है और वो इन्वेस्टमेंट वहां लोकेटेड है, उस रिसोर्स की वजह से, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से वो कंसल्टेंसी आपको दे रहा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट वहां एग्जिस्ट ना करती तो वो कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड ही नहीं करता, या वो आपको एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करता। तो सर हाँ, ऐसा लग रहा है। सो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग टू, जो सिंगापुर का सोर्स लोकेटेड है सिंगापुर में, यस, सिंगापुर में सोर्स लोकेटेड है। हाँ जी सर, ठीक है सर, मैंने आपका पर्सपेक्टिव लेने से पहले ये आंसर दे दिया, मैंने इस चीज को कंसीडर नहीं किया, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जो सोर्स है वो लोकेटेड होगा सिंगापुर के अंदर ही। तो ये जो दोनों इनकम है, इनका इन्वेस्टमेंट इनकम का भी, और बिकॉज दैट इन्वेस्टमेंट इज डिराइविंग द वैल्यू, सर वो भी देखना पड़ेगा जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, वो जो कंपनी के जो आपने शेयर्स खरीदे हैं, अगर वो सिंगापुर में लिस्टेड है, पर वो जो बिजनेस है, वो जो शेयर्स हैं वो उन कंपनीज के हैं जो लोकेटेड कहीं और है, तो सोर्स कहीं और चला जाएगा सर, क्योंकि लिस्टेड होने की वजह से ही सोर्स क्रिएट नहीं होता। हमें ये देखना है वो शेयर्स, वो इन्वेस्टमेंट अपनी वैल्यू कहां से डिराइव कर रहे हैं। आपके केस में जो एएमसी है, एएमसी की जो उसने अर्निंग कमाई है उसका सोर्स सिंगापुर ही लोकेटेड है, और जनरली अगर हम शेयर्स में और केसेस ना लेके चलें तो वो भी सिंगापुर ही लोकेटेड है। अब फिर एक और रूल आता है, वो बोलता है रेजिडेंस रूल। ये बोलता है कि एक कंट्री, वो भी कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कंट्री जो सोर्स रूल थी वो तो कहती है कंट्री ऐसे रिसोर्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो आपको लिवलीहुड का मौका देती है, सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करती है। पर रेजिडेंस रूल का जो कहना है वो ये है कि एक कंट्री उन चीजों पे भी तो खर्च करती है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो डेवलप करती है जो आपको बेसिक लाइफ जीने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपका रेजिडेंस उस कंट्री के अंदर होता है। आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में जो लिविंग स्ट्रक्चर है, सेम लिविंग स्ट्रक्चर और कंट्री में ना हो, क्योंकि यहाँ की सरकार जो बेसिक अमेनिटीज आपको प्रोवाइड कर रही है वो शायद ही कोई कंट्री प्रोवाइड कर रही हो, शायद ही कोई कंट्री उससे भी बढ़िया प्रोवाइड कर रही हो। पर जितना भी इंडियन गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, कुछ ना कुछ तो खर्चा कर ही रही है ना आपको, ये बेसिक अमेनिटीज, ताकि आप यहाँ पे रह रहे हैं।
तो रेजिडेंस रूल बोलता है कि उस कंट्री का हक बनता है जहां पे आप रहते हो, चाहे आप इनकम कहीं से भी कमाओ। फिर जो डबल टैक्सेशन है, डबल टैक्सेशन का मतलब होता है कि सेम इनकम दो बारी टैक्स हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन। अब डबल टैक्सेशन जब होता है तो वो दो तरीके का होता है फर्दर, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है जुडिशियल। जब जुरिडिकल टैक्सेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग कंट्रीज सेम इनकम को टैक्स करें, तो उसको हम बोलते हैं जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। जो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन होता है उसमें होता है सेम इनकम दो अलग अलग असेसीज के हाथ में टैक्सेबल हो जाए। लाइक अगर कोई कंपनी, इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है तो उसको पहले 115 ओ, सेक्शन 115 ओ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सीडीटी काटना पड़ता था और वो पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को। और जब वो डिविडेंड 10 लाख रुपए से मान लीजिए ऊपर है तो जो रिसीवर है डिविडेंड का उसको भी उसके ऊपर टैक्स देना है। तो इस केस के अंदर जो डिविडेंड है वो दो अलग अलग हाथों में टैक्स हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक टैक्सेशन। सेम गवर्नमेंट लगा रही है टैक्स पर दो अलग अलग लोगों से, इकोनॉमिक टैक्स, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जब हम जुरिडिकल डबल टैक्सेशन की बात करते हैं तो ये अराइज होता है जब सोर्स रूल और रेजिडेंस रूल्स एक इंसान के ऊपर एक साथ लग जाते हैं। और वो कब होगा? जब एक असेसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्या है, रेजिडेंट है, और दूसरी कंट्री के अंदर उसका क्या है, सोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि मिस्टर ए वो इंडिया के रेजिडेंट है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, पर वो एक हफ्ते के लिए कोई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस पे गए। उन्होंने क्या किया, यूरोप में कोई कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे उन्होंने एक लेक्चर दिया, डेलिब्रेशंस दी 3 दिन। जब उन्होंने 3 दिन की डेलिब्रेशंस दी तो उनको वहां पर $1,000 या 1,000 यूरोज पर डे उनको रेम्युनरेशन मिली। अब जब उनको 3,000 जो ये यूरोज मिल रहे हैं, ये क्या है, इसका जो सोर्स है वो तो फॉरेन में लोकेटेड है। तो अगर यूके भी सेम फॉलो करती है क्या, सोर्स रूल, वो कहती है जी हमें तो क्या कहते हैं नॉन रेजिडेंट की सोर्स वाली इनकम को टैक्स करना है, तो इन 3,000 यूरोस पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। उन्होंने मान लीजिए 300 यूरोस टैक्स ले लिया। जब वो इंडिया इनकम लेकर आता है मिस्टर एक्स, तो इंडिया वाले क्या बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमारे रेजिडेंट हो इसलिए आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। तो इंडियन गवर्नमेंट बोली कि आपके वो जो 3,000 यूरोज है उनको कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में, और अगर वो 3 लाख के करीब करीब अमाउंट आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स पे करो। तो इस इंसान के ऊपर दो अलग अलग गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया क्योंकि इसका रेजिडेंट अलग था, रेजिडेंशियल स्टेटस किसी और कंट्री के अंदर आ रहा है और इसका सोर्स किसी और कंट्री के अंदर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। तो जब कोई, अब तो ये तो हमने एक इंडिविजुअल की बात करी, अगर हम एक बिजनेस एंटिटी की बात करें, जैसे मैं स्टारबक्स की बात करूं, अगर स्टारबक्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में आके ऑपरेट कर रही है, उसका सोर्स इंडिया में है, पर अगर उसको एज पर रेजिडेंशियल स्टेटस उसका फॉरेन में है और उसको फॉरेन में भी टैक्स पे करना पड़ रहा है, अपनी होम कंट्री के अंदर भी पे करना पड़ रहा है, और जो होस्ट कंट्री इंडिया है उसके अंदर भी पे करना पड़ रहा है ड्यू टू सोर्स रूल, तो उस कंपनी के लिए, स्टारबक्स के लिए डबल टैक्सेशन नहीं हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, आफ्टर टैक्स इनकम है, वो कम रहेगी, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या मैं कहूं इंटरनेशनल ट्रेड करने में हिचकिचाएगी, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी रेजिडुअल इनकम है वो कम हो रही है। इसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड है, जो हम कहेंगे फ्री ट्रेड है, ऑब्जेक्टिव WTO का, वो डिस्करेज होता है, जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है, फ्री फ्लो ऑफ हम कहें गुड्स, सर्विसेज, लेबर, कैपिटल, ये रुक जाता है। क्योंकि अगर ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बोले, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर हम ये इनका इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन में होगा तो उससे जो फैक्टर इनकम आएगी, अगर उसके ऊपर 2-2 बारी टैक्स लगेगा तो उससे जो रेजिडुअल इनकम है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस
रुक जाता है। तो इसको रोकने के लिए प्लस एक प्रिंसिपल भी है वर्ल्ड वाइड, क्या कि सेम इनकम शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स ट्वाइस। इसके लिए हर कंट्री ने जनरली, अब तो हर कंट्री क्या ले आई है, डबल टैक्सेशन रिलीफ ले आई है। पर ये रिलीफ किसके लिए लेकर आई है, ये रिलीफ लेकर आई है जुरिडिकल डबल टैक्सेशन के लिए। अब टाइप्स ऑफ रिलीफ की बात करते हैं, तो रिलीफ भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है बायलेटरल रिलीफ और एक होता है यूनिलेटरल रिलीफ। बायलेटरल रिलीफ वो रिलीफ होता है जब दो सरकार, मतलब एक सरकार वो जहां पे असेसी क्या है, रेजिडेंट, और दूसरी सरकार जहां पर असेसी का क्या है, सोर्स। ऐसी दो सरकार आपस में मिलकर समझौता कर लें, एग्रीमेंट कर लें कि हम क्या करेंगे, जो डबली टैक्स इनकम है उसको अवॉइड करेंगे बाय गिविंग सम रिलीफ। तो जब वो रिलीफ देते हैं, जो इन्होंने आपस में समझौता करा दो कंट्रीज ने, उसको हम बोलते हैं बायलेटरल रिलीफ। तो इंडिया ने ऐसे ही मोर देन 90 कंट्रीज के साथ ट्रीटी साइन कर रखी है। आप ये बायलेटरल रिलीफ को बोल सकते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, टैक्स कन्वेंशन बोल सकते हैं, ट्रीटी बोल सकते हैं। तो इंडिया ने जो साइन करे हुए हैं वो श्रीलंका के साथ साइन किया हुआ है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ग्रीस एटसेट्रा। पर ये जो बायलेटरल रिलीफ है, ये भी अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करें, इंडिया ने जो कॉम्बिनेशन अडॉप्ट कर रखा है बायलेटरल और यूनिलेटरल, तो इंडिया में दोनों तरीके के जिनके साथ समझौता है इंडिया का, वो बायलेटरल रिलीफ है। और जहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, डीटीडब्ल्यूए एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पे सेक्शन 91 के थ्रू क्या दे रखा है, यूनिलेटरल रिलीफ। उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये जो बायलेटरल रिलीफ है, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है एग्जेम्पशन मेथड। एग्जेम्पशन मेथड में क्या होता है, एक सरकार कह देती है कि हम अपना राइट छोड़ रहे हैं, दूसरी सरकार फुली टैक्स करती है। और जनरली होता कौन सी सरकार अपना राइट छोड़ देती है, वो सरकार अपना राइट छोड़ देती है टैक्स लगाने का, वो सरकार एग्जेम्पशन, जहां पे एसएससी क्या होता है, रेजिडेंट होता है। क्योंकि मेन जो रूल चलता है ना वर्ल्ड वाइड, वो सोर्स वाला चलता है। सोर्स रूल विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर दी रेजिडेंट रूल, बिकॉज इनकम के पीछे सोर्स का ज्यादा हाथ होता है और सोर्स के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर का हाथ होता है ज्यादा। ठीक है। फिर आता है टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड के अंदर क्या होता है कि दोनों सरकार, अब जहां पे रेजिडेंट है असेसी और जहां पे उसका सोर्स है, वो दोनों सरकार क्या करती हैं, टैक्स लगाती हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एक्स जो है, मिस्टर एक्स, वो बाहर जाता है और यूरोप से इनकम कमाता है, तो ये जो यूरोपियन गवर्नमेंट है वो भी टैक्स लगाएगी और इंडियन गवर्नमेंट है वो भी टैक्स लगाएगी, दोनों सरकार टैक्स लगाएगी। पर एक सेकंड, जो यूरोपियन गवर्नमेंट है जो टैक्स लगा रही है और सोर्स के बेस पे लगा रही है, जो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वो बेसिकली ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, इसलिए टैक्स लगा रही है सर। दोनों का चार्जिंग सेक्शन अलग अलग है, चार्जिंग मेथड अलग अलग है उनका, और चार्जिंग रीजन भी अलग अलग है, बट बोथ आर टैक्सिंग द सेम इनकम। बोथ आर टैक्सिंग द सेम इनकम। तो हम इसको बोलेंगे कौन सी डबल टैक्सेशन, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। तो अब मेथड के अंदर क्या होता है कि जब दोनों सरकारें एक बार टैक्सेबल तो कर लेती है, पर जो बेसिकली जनरली मैं कहूंगा 99% केसेस के अंदर आपको मिलेगा कि जो रेजिडेंट कंट्री है ना, जहां पे रेजिडेंट है एसएससी का, वो क्या कर देगी, रिलीफ दे देगी, क्रेडिट दे देगी फॉरेन टैक्स जो पे किया है। ओके, तो मनोज जी मैं इसको कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट आते हैं, एक मनोज जी मैं अगर कंक्लूड करूंगा अगर, तो इन केस ऑफ डीटीए, जिन कंट्री के साथ हमारा डीटीए हो रखा है, तो जिस कंट्री का अगर रेजिडेंट है, जनरली अगर हम डीटीए को पढ़ेंगे तो जहां का जो रेजिडेंट होगा उसने वो इनकम छोड़ रखी होगी टैक्स करने के लिए, जहां पे उसका सोर्स होगा मेनली उसने उसको टैक्स कर रखा होगा। हाँ जी सर, जनरली तो यही होता है सर, जनरली यही होता है। हाँ, बट इन केस ऑफ जहां पे हमारा कोई भी डीटीए नहीं है, उस केस में हमारा एक बेसिकली टैक्स क्रेडिट वाला मेथड हम यूज करेंगे, बिकॉज वहां पे कोई अपनी इनकम छोड़ेगा नहीं एक्जेक्टली, बिकॉज कोई भी हमारा एग्रीमेंट नहीं है वहां पे। तो जैसे हमने भाई एग्जांपल, सर इसकी एक एक्सेप्शन है। संगम सर, इसकी एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हम पुरानी इंडो मॉरिशस ट्रीटी देखें, इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो ट्रीटी देखें,
तो उसमें ये था कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती थी डिविडेंड की फॉर्म में या कैपिटल गेन की फॉर्म में, उसका सारा का सारा हक किसके पास जाता था? सोर्स इंडिया में है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इंडियन कंपनी के अंदर है, मॉरिशियस कंपनीज की, पर राइट किसके पास था? मॉरिशियस कंपनी के पास टैक्स लगाने का। तो वो एक एक्सेप्शन कह सकते हैं सर इस रूल की। तो वो भी अमेंड हो गया आई थिंक ना लास्ट 2 ईयर। हाँ जी सर, वो मैं वही कह रहा हूँ सर, हम पुराने अगर प्रोविजंस को देखें इंडो मॉरिशस ट्रीटी की, तो वो ऐसा कहते थे, वो एक एक्सेप्शन थे, जिसकी वजह से सर नुकसान भी हो रहा था कि हम अपनी कि सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टैक्स मॉरिशस खाता था। और वहां पे क्या था, टैक्स हेवन होने की वजह से मेनली कंपनी उसके थ्रू चीजों को रूट करती थी। हाँ जी, जितनी भी ग्लोबल, जितनी भी यूएस यूके बेस्ड कंपनीज थी, वो सारी की सारी मॉरिशस में डब्बा कंपनी रजिस्टर कराती थी और फिर इन्वेस्टमेंट लेकर आती थी इंडिया में, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर हम बात करते हैं यूनिलेटरल रिलीफ। मान लीजिए कोई कंट्री है, वो इंडिया के साथ समझौता नहीं कर रही, वो राजी नहीं है इंडिया के साथ, पर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वो कंट्री के साथ हमारा समझौता नहीं हो रहा तो यहाँ के रेजिडेंट्स को ये बोला जाए कि आप वहां से इनकम नहीं कमा सकते। तो अगर हमारा किसी कंट्री के साथ समझौता नहीं है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के ऊपर, पर हमारा रेजिडेंट वहां से इनकम कमा के लेकर आ रहा है, तो उस कंट्री ने सोर्स के बेस पे टैक्स लगा दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि हमारा चाइना के साथ, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, चाइना के साथ हमारा कोई DTAA एग्जिस्ट नहीं करता और इंडियन गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि कोई DTA साइन हो, DTAA चाइना के साथ, पर हमारा जो इंडियन है वो चाइना को कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है और या वहां पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है और वहां से जो इनकम कमा के लेकर आ रहा है उस पर चाइना ने क्या करा, पहले टैक्स लगा दिया। अब जब वो इंडिया में आ रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है आप रेजिडेंट हो इंडिया के अंदर, आपकी चाइनीज इनकम के ऊपर भी इंडियन टैक्स लगेगा। नहीं करता तो क्या दिया जाता है, यूनिलेटरल रिलीफ। यहां पे खुद बिना चाइना गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट किए इंडियन गवर्नमेंट खुद रिलीफ दे देगी। तो जब खुद रिलीफ देती है तो यहां पे इंडियन गवर्नमेंट अकेली है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ। तो मनु जी ये जो रिलीफ दिया जाएगा, ये कोई एग्रीमेंट तो होगा नहीं इसका, या फिर इसका भी कोई एग्रीमेंट होगा? सर अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो वो यूनिलेटरल रिलीफ बन जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने आप देगी रिलीफ। तो उस रिलीफ को कहाँ लिखेगी? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा जाएगा? उस रिलीफ के बारे में कहाँ लिखा जाएगा? सर वो रिलीफ दिया हुआ है सर, आज हम वही डिस्कस करेंगे आगे जाके। सेक्शन 90 डबल टैक्सेशन रिलीफ, बायलेटरल रिलीफ है, और जो यूनिलेटरल रिलीफ है उसके लिए सेक्शन 91 है। ओके, हाँ जी सर, हम अभी वही कवर करने जा रहे हैं। सेक्शन 90, सेक्शन 90A, सेक्शन 91 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, या हम कहेंगे डबल टैक्सेशन रिलीफ के बारे में प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। जो सेक्शन 90A है ये है बायलेटरल रिलीफ, और 91 जो है सेक्शन वो है यूनिलेटरल रिलीफ। अब बात करते हैं सेक्शन 90 क्या है। सेक्शन 90 जो है वो है DTAA। जितने भी ये DTAA बनते हैं ना, वो सारे के सारे इस सेक्शन के अंडर बनते हैं, सेक्शन नंबर 90। ये क्या बोलता है, ये सेंट्रल, इसका जो सबसेक्शन 1 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको पावर देता है कि वो कोई भी सरकार, कहा कि दूसरी कंट्री की जो आउटसाइड इंडिया है या स्पेसिफाइड टेरिटरी। अब आप कहेंगे कि आउटसाइड इंडिया तो कोई भी जगह हो वो कंट्री आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी, पर कुछ ऐसी जगहें हैं जो कंट्री के अंदर पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन है। लाइक मैं बात करूं अंडोरा, लग्जमबर्ग, ये सारे के सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं और ये ना किसी कंट्री के स्मॉल पार्ट्स हैं, तो हम उनको कंट्री नहीं बोलते, नेशंस नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं टेरिटरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां के गवर्नर या वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां का जो रूलर है, उनके साथ एग्रीमेंट कर सकती है, जिसको हम DTAA बोलते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या टैक्स ट्रीटी। किस पर्पस के लिए एंटर कर सकती है? फॉर गिविंग रिलीफ, डबल टैक्सेशन का रिलीफ। अब इसमें समझौता होता है कि या तो आप टैक्स छोड़ दो या हम टैक्स छोड़ देते हैं, या थोड़ा आप लगा लो थोड़ा हम लगा लेते हैं, या हम रेजिडेंट, अगर रेजिडेंट हमारी कंट्री का है तो आप टैक्स ले लेना अगर सोर्स आपकी कंट्री में है, अगर आपके रेजिडेंट का सोर्स हमारे कंट्री में हुआ तो टैक्स हम लगाएंगे उस इनकम के ऊपर। तो ऐसे नेगोशिएशंस होती हैं इन एग्रीमेंट्स में।
दूसरा, इन एग्रीमेंट्स का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक विजय माल्या इंडिया से छोड़ के गए, जब इंडिया से छोड़ के गए तो उन्होंने सारा का सारा पैसा बाहर लोकेट कर रखा है। अब अगर यही इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट के पास पहले होती तो इंडियन गवर्नमेंट एक्शन ले सकती थी। या कुछ हमारी कंट्री के रेजिडेंट जो आके रखते हैं बाहर के बैंक्स के अंदर, और वो इंफॉर्मेशन बाहर की टेरिटरीज कहती हैं जी आप हमारे यहाँ पैसा रखिए, हम आपको पूरी की पूरी सुविधा ये प्रोवाइड करते हैं कि हम आपकी सरकार के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी और गवर्नमेंट के साथ, बाहर की टेरिटरी के साथ ये वादा करती है कि आप हमारे रेजिडेंट की इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हम आपके जो रेजिडेंट इंडिया में, जिन्होंने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी या पैसा रख रखा है, हम उसकी डिटेल दे देंगे। तो वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी जो ट्रीटी बनेगी वो इस सेक्शन के अंडर ही बनेगी। तो डीटी जो जितनी भी ट्रीटी बनती है उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है, ताकि क्या प्रिवेंट करा जाए, इवेजन या अवॉइडेंस। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट सामने वाली सरकार से यह भी समझौता कर सकती है कि अगर विजय मलाया आपके यहां पर है और वो इंडिया का टैक्स चोरी करके भागा है, तो आप उसको पकड़िए और उसकी रिकवरी में हेल्प कीजिए। और जब आप यहां से कोई भागकर इंडिया आएगा तो आपका टैक्स चोरी कर इंडिया आएगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे रिकवरी के अंदर। तो कोऑपरेशन इन रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स is also a part of the, can also the part of the treaties। अब एक सीबीडीटी का सर्कुलर आया जो कि 2 अप्रैल 1982 को आया। इसने ये बोला कि जो स्पेसिफिक जो डीटीए है, डीटी डबल ए, क्या सभी के ऊपर लगता है? सभी के ऊपर नहीं लगता डीटीए। डीटीए तभी लगेगा जब आप ऐसी, ये तभी लगेगा, इसके प्रोविजन तभी लगेंगे जब इंडियन गवर्नमेंट ने सामने वाली गवर्नमेंट के साथ क्या कर रखा हो, डीटीए बना रखा हो, और आप रेजिडेंट इंडिया के अंदर है और सोर्स कहां पर है, आपका उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर है। अब मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था श्रीलंका के साथ इंडिया का डीटी डबल ए एग्जिस्ट करता है, और आप आयरलैंड के साथ आयरलैंड में जाके इनकम कमा रहे हैं, आप रेजिडेंट इंडिया के हैं, तो क्या डीटीए आप जो इंडिया और श्रीलंका वाला है उसको इन्वोक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि डीटी डबल ए एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर अगर डीटी डबल ए एग्जिस्ट करता है, आपका जो सोर्स है वो श्रीलंका में है, तो डीटी डबल ए इन्वोक कर सकते हैं आप। तो डीटी डबल ए क्या है, ये स्पेसिफिक प्रोविजंस है, ये पर्टिकुलर केस के अंदर लगेंगे, और जब स्पेसिफिक प्रोविजन होते हैं वो जनरल प्रोविजन से के ऊपर प्रिवेल करते हैं, ओवरराइडिंग होते हैं। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 1990A और 91 को छोड़ के बाकी प्रोविजंस है वो जनरल प्रोविजंस है। तो आपको ये देखना है कि डीटी डबल ए के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे या इनकम टैक्स एक्ट के प्रिवेल करेंगे। तो सीबीडीटी के सर्कुलर ने क्लियर कर दिया, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आती है बिटवीन द प्रोविजन ऑफ डीटी डबल ए एंड बिटवीन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो किसके प्रोविजन प्रिवेल करेंगे? डीटी डबल ए के। ठीक है। हाँ, अगर कोई प्रोविजन, पर्टिकुलर प्रोविजन है, कोई पर्टिकुलर चीज है, उसके ऊपर डीटी डबल ए में नहीं लिखा हुआ, तो कौन सा एक्ट लगेगा उसके ऊपर? उसके ऊपर प्रोविजंस लगेंगे इनकम टैक्स एक्ट के, डोमेस्टिक टैक्स लॉ लगेगा। इसी के ऊपर एक और बात आई कि इसी के अंदर एक और थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं फ्रिक्शन है। क्या? सेक्शन 90 सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि जो असेसी, जब असेसी अपने ऊपर ये प्रोविजन लगाएगा या वो इनका क्लेम लेगा, तो उसको ये देखना है कौन से प्रोविजन उसके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर उसको ये देखना है डीटी डबल ए के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो ज्यादा फेवरेबल है, और वैसे तो जनरली कौन सा प्रिवेल करेगा? डीटी डबल ए। पर उसको ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू डीटी डबल ए। तो वो कौन सा अप्लाई कर सकता है? वो वाला अप्लाई करेगा जो उसको बेनिफिशियल है। तो वो कौन सा अप्लाई कर लेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961।
तो मनु जी हाँ जी, ये समझ ऑप्शन दोनों के पास है, जो इंडियन एसएससी उनके पास भी है, जो बाहर के एसएससी उनके पास भी सेम चीज है? सर सारे एसएससी के ऊपर नहीं है, ये डिपेंड करेगा डीटीए। अगर इंडिया और श्रीलंका का डीटीए है तो वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? वो सिर्फ एप्लीकेबल है जो रेजिडेंट है इंडिया का या श्रीलंका का। फिर बात ये आती है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो मैंने सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 की बात करी, कि अब तो आपने देखा होगा जो रॉयल्टी का सेक्शन है, रॉयल्टी के अब जो टीडीएस है, विद होल्डिंग है, वो 10% हो गई। पहले ये विद होल्डिंग कितनी हुआ करती थी? पहले ही विद होल्डिंग का जो रेट हुआ करता था वो 20% हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और जो डीटीडब्ल्यू है, मान लीजिए उसके अंदर लिखा हुआ है 10%, तो बताइए तो विद होल्डिंग किस पर होनी चाहिए? 10% पर या 20% पर? 10% पे। 10% पे। पर मान लीजिए इनकम टैक्स के अंदर एक अमेंडमेंट आ जाती है और इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि जो विद होल्डिंग है वो 5% होनी चाहिए, और डीटीडब्ल्यू बोलता है कि 10% होनी चाहिए। तो अब कौन सा लगेगा? अब टैक्स एक्ट का प्रोविजन 5%, क्योंकि जो ज्यादा बेनिफिशियल है वही लगेगा। बट अगर हम करंट एग्जांपल में, आपके एग्जांपल में बात करें, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 10% है, एज पर डीटीए भी 10% है, तो इवन इफ वी प्रेफर फॉर डीटीए बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट सरचार्ज और सेस एडिशनल लगता है, तो हाँ जी सर, नेट टैक्स निकालेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग है, तो मोर बेनिफिशियल डीटीडब्ल्यू हो जाएगा। यस यस यस। हाँ, अब हम बात करें कि एक्सेप्शन है इसकी भी, ये जो मैंने आपको बोला ना कि मोर बेनिफिशियल जो होगा एसएससी को वही लगेगा, इसका एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? गार। अब जो गार के प्रोविजन है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 10A, ये एक अमेंडमेंट लाए थे, उसके थ्रू ये इंसर्ट करे गए गार प्रोविजंस। और ये लाए भी किसके लिए थे? जो संगम सर ने जो ये जो डिस्कशन आज हमने की थी वोडाफोन केस के ऊपर, उसमें क्या था? उसमें मेन सब्सटेंस क्या था? सब्सटेंस है इंडियन कंपनी के शेयर्स, और आपने उसको लीगल फॉर्म क्या दिखा दी? आपने उसकी लीगल फॉर्म दिखा दी जी, वो आउटसाइड इंडिया सीजीपी के थ्रू। तो उन्होंने बोला भाई ऐसे तो क्या होगा कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएंगे, वहां पे भी कोई सुलह तो हुई नहीं थी वोडाफोन केस के अंदर, अभी कोई रिकवरी भी नहीं हो पाई। तो इंडियन सरकार जब हार गई तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा कि भैया ऐसे तो फ्यूचर में और भी क्रिएटिव अकाउंटिंग, क्रिएटिव एग्रीमेंट्स बन सकते हैं जो इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं टैक्स का। तो ये लेकर आए गार प्रोविजंस। गार प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। वो कहते हैं अगर हमें ये पता चल गया ना कि लॉ की जो लॉ मेकर की जो स्पिरिट थी आपने उसको इरोड करा है और आपने टैक्स अवॉइडेंस की है, और जो टैक्स का बेनिफिट है वो 3 करोड़ से ऊपर का है, तो हम क्या इन्वोक कर देंगे? गार। और हम उस ट्रांजेक्शन को क्या डिक्लेयर कर देंगे? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन, अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दैट इज आल्सो कॉल्ड शेम ट्रांजेक्शन। यस सर। तो अगर गार लग जाता है तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा बेनिफिशियल है, तब तो फिर गार ही प्रिवेल करेगा। फिर हम बात करते हैं डीटीए में जो टर्म्स हैं, जनरली कुछ टर्म्स डीटीए में डिफाइन होती है, वहां पे भी डेफिनेशन का आर्टिकल होता है। तो अगर कुछ टर्म्स डीटीए में डिफाइंड है पर कुछ टर्म डीटीए में डिफाइंड नहीं है, वो अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइंड है, आइदर बाय वे ऑफ प्रोविजो, आइदर बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो हम वो डेफिनेशन लेके चलेंगे। अगर वो टर्म ना तो डीटी वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन है, पर वो डिफाइंड है, गवर्नमेंट ने क्या किया क्लैरिटी लाने के लिए बाद में एक नोटिफिकेशन लेकर आई, और नोटिफिकेशन के थ्रू वो मीनिंग लेकर आई। पर मान लीजिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और इंडोनेशिया का एक डीटीडब्ल्यू बना 2016 के अंदर, उसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुई इंडियन कंपनी और एक मॉरिशस के बीच, इंडोनेशियन कंपनी के बीच में, और उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बाय नोटिफिकेशन एक मीनिंग, एक टर्म को डिफाइन करना पड़ा, और वो नोटिफिकेशन लेकर आए 2019 में। तो यहां पे एक क्लैरिटी दी गई क्या कि वो जो टर्म है ना, वो उसका जो मीनिंग है वो उस नोटिफिकेशन में जैसा डिफाइन किया वैसा लेके चलेंगे। पर ये कब से लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। और ये रेट्रोस्पेक्टिवली मीनिंग कब से निकालेंगे? जब से वो डीटीए
एनफोर्सिबिलिटी में आया। तो 2016 से लेके चलेंगे उसका मीनिंग, चाहे नोटिफिकेशन 2019 में आई। फिर आता है कि जो संगम सर बात कर रहे थे, संगम जी बात कर रहे थे कि डीटीए का बेनिफिट कौन ले सकता है। डीटीए का बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का रेजिडेंट। अभी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वो कंट्रीज होती हैं जिनके बीच में वो पर्टिकुलर डीटीए साइन हुआ। जैसे अगर हम इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में अगर डीटीए है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स कौन कौन से हुए? इंडिया और इंडोनेशिया। तो उन्हीं के रेजिडेंट्स, वही एसएससीज जो कि इंडिया या इंडोनेशिया के रेजिडेंट है, वही डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट ले सकते हैं। पर मान लीजिए इंडिया में किसी का सोर्स है, या मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया का, और वो क्या कर रहा है, इंडोनेशिया का रेजिडेंट है और इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट उसकी सोर्स वाली इनकम पे टैक्स लगा रही है, और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी एक पर्टिकुलर बेनिफिट दे रखा है कि डीटीडब्ल्यूए में लिखा हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया की कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, वो एग्जेम्प्ट कर देगी। टैक्स कौन लगाएगा? टैक्स लगाएगा इंडोनेशिया। तो इस केस के अंदर अगर उसको बेनिफिट लेना है तो हम कैसे पहचाने कि वो रेजिडेंट इंडोनेशिया का है? तो उसको एक डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, जो कि प्रूफ करेगा कि वो इंडोनेशिया का क्या है, रेजिडेंट। और ये जो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है, क्या ये एक बार ही लेकर आना है या हर साल जमा कराना है या कुछ फ्रीक्वेंसी है इसकी? तो ये डिपेंड करेगा कि जो सामने वाला कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है ना, वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस देखने की। जैसे हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं वो एक बार ही देखते हैं या हर 5 साल में देखते हैं या हर साल देखते हैं? हम तो हर साल देखते हैं। जब हम हर साल देखते हैं, ऐसे हमें देखना है कि इंडोनेशिया में भी क्या हर साल देखा जाता है। अगर हर साल देखा जाता है तो अगर उसको हर साल ये सबमिट करना है जिस साल वो बेनिफिट लेना चाहता है डीटीडब्ल्यूए का। तो मनोज जी मैं यहाँ पे ना एक ऐड करना चाहूंगा। तो ऐसे बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ वी आइडेंटिफाई बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ वी आइडेंटिफाई कि वहां का क्या लो है? तो जनरली क्या होता है, टीआरसी के अंदर डेट लिखी होती है कि अप टू दिस डेट तक ये वैलिड है। तो डेट बेस्ड अपॉन दैट वैलिडिटी वी कंसीडर कि सपोज द वैलिडिटी इज अप टू 31 दिसंबर 2020 एंड वी आर मेकिंग पेमेंट इन द मई और जून 2020, और वो नहीं चलेगा, that time that is valid. But if we are making payment in Jan 2021, in that case, if that Indonesian person producing the TRC having due date of 31st December, that is not valid at that time. सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल ही मैं यही करता हूँ सर इस बात से। So we are not bothered कि whatever their government frequency to issue TRC, the validity date on TRC is sufficient evidence in itself. No need to yes sir, it is a prima facie evidence. सर मैं यहाँ पे ये इलेबोरेट करना चाह रहा था कि आपको क्या एक ही बार आपने टीआरसी ले लिया उससे काम चल जाएगा? नहीं। वो डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी जो है टीआरसी की वो डिपेंड करती है, या तो जैसे संगम जी ने बताया, मैं कहूंगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो संगम जी ने बताया हम उसको लेके चलेंगे। जनरली जो टीआरसी होते हैं उनके ऊपर ना जो वहां की गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो इशू करता है, वहां का टैक्स डिपार्टमेंट या वहां का जो अगर चैम्बर है अगर वो इशू कर रहा है तो वो मेंशन करते हैं। और वो मेंशन भी कैसे करते हैं? डेट, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने की। पर अगर कोई कंट्री अगर मेंशन नहीं करती वैलिडिटी, तो आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है वो देखनी पड़ेगी कि उस कंट्री में क्या फ्रीक्वेंसी चलती है रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो मनोज जी काइंडली क्लैरिफाई दिस पॉइंट कि if such resident do not have TRC, is form 10F is equal to TRC? Can we give benefit of DTAA based upon 10F only? No sir. In my opinion, sir, in my opinion, TRC is required. Okay. TRC is a must case. But sir, I have to confirm from other academicians regarding this. No issue. Friends, whatever question we will left on during discussion, we will reply those questions in our comment, because in our YouTube video we have a comment section also. So if we have any unanswered question during this discussion, we will reply them at the comment box in that.
And friend, you can also ask your question in the comment box. As soon as we will check that, and we will definitely provide you the expert opinion over that question. Anuj, go ahead. ओके, अच्छा, ये जो एक और बात आ रही थी कि मोर बेनिफिशियल की जो हम बात कर रहे थे कि एसएससी को मोर बेनिफिशियल क्या है, तो अगर एक फॉरेन कंपनी का अगर हम टैक्स रेट देखें तो वो कितना है? फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या है इंडिया के अंदर? वो है 40%। 40%। 40%, और हम बोले सेस है वो 2%। और हम यही बात करें कि अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है उसके ऊपर टैक्स रेट क्या है? वो है 30%। अगर हम रिड्यूस वाला लेके चलें 25%, 22%, 15%। तो आप अगर ये बोलें कि ये जो फॉरेन कंपनी है इस पे तो आप ज्यादा लगा रहे हो टैक्स रेट, पर ऐसे ही अगर डीटीए में लिखा हो, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितना मेंशन है? 40%। पर अगर डीटीए में मान लीजिए कोई मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लीजिए कोई जापानीज कंपनी है और इंडिया और जापान का एक डीटीडब्ल्यूए साइन हो चुका है, और जो जापानीज कंपनी है अगर वो इंडिया में पैसा इनकम कमाती है तो उसके लिए हमारा टैक्स रेट है 40% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। तो ये जो 40% है, पर डीटीडब्ल्यूए में क्या लिखा हुआ है इंडिया और जापान के, कि अगर कोई जापानीज कंपनी इंडिया में आके कमाती है तो उसके लिए टैक्स रेट है 25%। तो बताइए कौन सा चलेगा, कौन सा लगेगा? 25% लगेगा एज पर डीटीए। संगम जी, मैं यहाँ पे आपको इस चीज के ऊपर क्लैरिटी देना चाहूंगा। यहाँ पे लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, सेक्शन 90 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर वो डीटीडब्ल्यूए का वो जो रेट है फॉरेन कंपनी के लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर मैटर है जहां पे फॉरेन कंपनी के लिए जो टैक्स का रेट है वो वही लगेगा जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर वो हायर है ना तो उसको आप लेस फेवरेबल नहीं लेके चलेंगे, ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। बाकी और प्रोविजंस में आप डीटीडब्ल्यूए लेकर चलेंगे, डीटीडब्ल्यूए प्रिवेल करेगा। ओके, तो मनु जी मैं यहाँ पे समरी करना चाहूंगा इसको कि जैसे कि कोई फॉर चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू चेक वेदर व्हिच इज मोर बेनिफिशियल फॉर रेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ in case of foreign company that income tax act will prevail because in income tax rate is 40%, and as per if the rate of tax and DTA is lower then income tax will prevail. But for charging point of view ki whether such income is taxable in India or outside India, that time we can check which is more beneficial to SSC. यस सर, यस सर। सिर्फ रेट के लिए, जैसे कि आप कह रही हैं सर कि कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको डीटीडब्ल्यूए ने छूट दे रखी है इंडिया के अंदर जापानीज कंपनी, तो डीटीडब्ल्यूए चलेगा। ओके, अगर वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो टैक्सेबल है उस जापानीज कंपनी की पर्टिकुलर इनकम, और डीटीडब्ल्यूए में लिखा है कि वो एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्प्ट ही मानी जाएगी। पर जब हम रेट की बात करेंगे ना फॉरेन कंपनी के रेट के लिए, तो वो तो वही प्रिवेल करेगा जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। गॉट इट। फिर ये एक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इसको इन्वोक नहीं किया आज तक। ये सेक्शन सेम है, सेक्शन 90 का कॉपी है एक तरीके से, कि यहाँ पे सेक्शन 90 में किसको पावर थी एग्रीमेंट करने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यहाँ पे पावर है किसके पास? स्पेसिफाइड एसोसिएशंस। लाइक हम बात करें सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या हम बात करें आरबीआई की, फाइनेंस कंट्रोलर, मैं ये कहूंगा फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ आवर कंट्री, और कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी। तो ऐसी अथॉरिटीज जैसे कि अगर आरबीआई यूएस के साथ अगर कोई ट्रीटी साइन करती है, टैक्स ट्रीटी या इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रीटी करती है साइन, तो वो कर सकती है, एज पर सेक्शन 90A पावर है। पर उसकी जो एनफोर्सिबिलिटी है वो तभी आएगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर लेगी, अडॉप्ट कर लेगी और उसको क्या कर देगी, नोटिफाई कर देगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर, तभी उसकी एनफोर्सिबिलिटी आ पाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है क्योंकि आज तक इसको अभी तक इन्वोक नहीं किया गया, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। फिर लास्ट आता है हमारा जो आज की डिस्कशन का है, वो है यूनिलैटरल रिलीफ। तो सेक्शन 91 है इनकम टैक्स एक्ट का, कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी कंट्री से नॉन रेजिडेंट आता है इंडिया में
और अगर वो या एक इंडियन रेजिडेंट है, सॉरी मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सेक्शन 91 तब एप्लीकेबल होता है जब इंडियन रेजिडेंट कोई ऐसी टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी या फॉरेन कंट्री से पैसा कमा के ला रहा है जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट का क्या नहीं है, DTAA एग्जिस्ट नहीं करता, तब इंडियन गवर्नमेंट उसको खुद रिलीफ देगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल रिलीफ। तो ये कब अप्लाई होता है, सेक्शन 91 तब अप्लाई होता है जब उन केसेस के अंदर जहां से इनकम आ रही है हमारे रेजिडेंट को, जहां पे जिन उन टेरिटरीज के साथ हमारा क्या नहीं है, DTAA एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये सेक्शन 91 आप कब अवेल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो पढ़ते हैं। पहला है कि असेसी मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। दूसरा, वो इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू और अराइज होनी चाहिए, इसका मतलब सोर्स हमारा बाहर होना चाहिए। That income is not deemed to accrue or arise in India. Fourth condition, that income should be subject to, मतलब वो फॉरेन टेरिटरी के अंदर टैक्सेबल हो गई हो असेसी के हैंड में, प्लस असेसी ने उसके ऊपर टैक्स भी पे कर दिया हो फॉरेन में, चाहे उसने TDS के थ्रू पे किया हो, विद होल्डिंग के थ्रू पे किया हो, और इंडिया का उस फॉरेन कंट्री के साथ कोई DTA एग्जिस्ट ना करता, तब ये यूनिलेटरल रिलीफ अप्लाई हो जाएगा, ये वाला सेक्शन इन्वोक हो सकता है। तो इसमें जो रिलीफ दिया जाता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक रेजिडेंट है मिस्टर एक्स और वो ब्राजील से इनकम कमा के लेकर आता है, जो वो इंडिया के अंदर क्या है, रेजिडेंट है, 2019-20 के अंदर वो इंडिया के अंदर रेजिडेंट था, और वो दिसंबर 2019 में कुछ दिनों के लिए फॉरेन जाता है और वहां पे वो कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है और उससे वो कमा के लाता है 4 लाख रुपया, और इंडियन इनकम है उसकी 6 लाख रुपया, तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 10 लाख रुपया। अब इस 10 लाख रुपए के हिसाब से अगर हम टैक्स लगाएं तो इंडिया में उसका टैक्स बनकर आता है टोटल इनकम के ऊपर, फॉरेन और इंडियन दोनों को मिलाकर इंडिया में इनकम टैक्स, हाँ 1,12,500 प्लस सेस। अब जो ब्राजील से वो 4 लाख रुपए इनकम कमा के लाया था, उन्होंने उसका वहां पे टैक्स रेट हम लेके चलते हैं 10% है, और उन्होंने वो विदहोल्ड कर लिया उसका, तो 40,000 रुपए उसका टैक्स काट लिया, ठीक है। अब उसको क्रेडिट कितना दिया जाएगा, तो उसको सेक्शन 91 में टैक्स का रिलीफ या मैं कहूंगा रिबेट कैसे मिलेगी, ऐसे होगा जो उसकी टोटल इनकम है इंडिया में और बाहर, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो, 1,12,500 प्लस एजुकेशन सेस लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 91, वो क्या होगा, वो होगा लोअर ऑफ दी क्या चीज, आप क्या करोगे, एवरेज इंडियन टैक्स रेट लोगे और फॉरेन टैक्स रेट लोगे, विच एवर इज लोअर, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो उसकी फॉरेन इनकम है, जो 2 बारी टैक्स हुई है, वहां पे भी टैक्स हुई है 4 लाख रुपया, जो उसका 4 लाख रुपया था वो ब्राजील में भी टैक्स हुआ है और इंडिया में भी टैक्स हुआ है, जो उसने 6 लाख रुपया इंडिया से कमाया था वो सिर्फ इंडिया में टैक्सेबल है, तो उसकी डबली टैक्स इनकम कौन सी होती है, जो फॉरेन इनकम होती है, क्योंकि वो इंडिया में भी टैक्सेबल है, फॉरेन में भी टैक्सेबल है। अब यहाँ पे एवरेज रेट कैसे निकालेंगे इंडियन, इस पे बात करते हैं। तो 1,12,500 प्लस 4% सेस 1,17,000 करीब डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये निकल कर आता है 11.7%। और ब्राजील में क्या टैक्स रेट था वो कर लो, वहां पे 40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख 10%, विच एवर इज लोअर 10%। तो आप क्या करोगे, 10% को मल्टीप्लाई करोगे, जो उसकी डबली टैक्स इनकम थी 4 लाख, दैट इज 40,000, तो उसका 1,17,000 में से आप 40,000 का क्या दे दोगे, रिबेट या रिलीफ दे दोगे सेक्शन 91 के अंदर, तो उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 1,17,000 माइनस 40। मनोज जी, अगर इसी एग्जांपल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं हम, उसकी इंडिया में इनकम थी 3 लाख रुपए की,
4 लाख रुपए की इनकम वो बाहर से लेके आया। कितने की इनकम लेकर आया सर बाहर से? 4 लाख रुपए की, और 3 लाख रुपए की इसकी इंडिया में इनकम थी, टोटल 7 लाख रुपए की इनकम हो गई। ओके, ठीक है, तो 7 लाख रुपए में अगर टैक्स निकालते हैं, अगर 5 लाख से ऊपर तो 20% टैक्स हो गया आपका 40,000 रुपए, और 12,500 वो 52,500 प्लस 4% प्लस 4%, सर ये आ गया 54,600 डिवाइड बाय 7 लाख, डिवाइडेड बाय 7 लाख, सर ये आता है 7.8%। ठीक है, तो अब बाहर को टैक्स जो रिलीफ है, हाँ सर, अब जो रिलीफ है वो मिलेगा 4 लाख, बाहर की इनकम 4 लाख, लोअर ऑफ द इंडियन एवरेज इंडियन रेट और फॉरेन रेट, तो दैट इज 7.8%। तो 7.8% इंटू 4 लाख 31,200 रुपए का उसको रिलीफ मिल जाएगा 91 के अंदर बेसिकली। हाँ जी सर, आई थिंक इट इज क्लियर सर। तो हम यहाँ पे अपनी जो सेशन है वो एंड करना चाहेंगे। ओके ओके, थैंक यू मनु जी टू एक्सप्लेन such a difficult part in a very lucid language so that we all can understand very easily. So friends, whatever question you have from out of today's part 1 session, you can write in our comment box and we'll try to resolve your all the question, and kindly see you in our next part. We'll also upload our part 2. In that we will cover further topics in our international tax series. And friends, I request you kindly subscribe our YouTube channel and also click the bell icon so that you can get the updated videos of our upcoming topics. So thank you Manuji for taking this session in such a good manner and making aware about this difficult topic, and which is somehow very important for the all professionals including chartered accountants. Thank you very much Manuji. Thank you Sangamji, thank you sir. Thank you.